Assalamu alaikum dear students. In the previous class, we have actually concluded the concept of vectors and the regarding exercises. And now we are in a position to discuss the next topic, and that's called three-dimensional geometry or three-dimensional coordinate geometry, which is very much important concept as far your examinations JEE or AIEEE is concerned. So Jigar, here we are in a position to discuss another important concept regarding mathematics, and that is three-dimensional geometry. Three-dimensional Cartesian coordinate geometry or simply coordinate geometry, चाहे ये ज्योमेट्री टू डायमेंशनल ज्योमेट्री हो या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हो, अलग अलग से डिस्कस हम करेंगे. तो जिगरा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री. It's also known as this coordinate geometry is also known as analytical geometry, because coordinate geometry is all about studying the concepts of geometry using algebra. So we are actually studying the concepts of geometry, but not by using the geometrical instruments. Means if you have to find the distance between 2 points, you need to calculate that distance by applying distance formula, that square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square in case of two-dimensional geometry, and in case of three-dimensional geometry it is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So you are actually calculating the distance between two fixed points, two given points whose coordinates are given. So you are dealing with coordinate geometry because you are directly applying coordinates of points, whether in a plane or in space, whether in two-dimensional geometry or in 3D geometry, three-dimensional geometry. So Jigar, you are actually dealing with the concepts of geometry, but not by using the geometrical instruments, but by using the concept of this algebra. So to study the concept of geometry using algebra is actually called analytical geometry or coordinate geometry. So in order to discuss this three-dimensional geometry, we first review the concepts of two-dimensional geometry. So in case of two-dimensional geometry, when we are talking about 2D geometry, two-dimensional geometry, in that two-dimensional geometry we have only two dimensions, x-axis and y-axis. So for instance, we have here x-axis like this, and we have another axis perpendicular to it, and that's called y-axis. So this is denoted by x dash, and this one is denoted by y dash. So two perpendicular lines, two perpendicular axes are there. One is the horizontal x-axis, which is just parallel to the Earth's surface, and that's called what? This x-axis. And next one is perpendicular to the x-axis, and that one is called the y-axis. And the point of intersection of these two perpendicular axes, that is actually the reference point, and that reference point we denoted by letter O, means that is the origin. So O is the origin, means origin is the point of intersection of this x-axis and y-axis. Origin is the point of intersection of two perpendicular axes, x-axis and y-axis. So here we are dealing with two-dimensional geometry, because every point, whether lying here, here or here, must have two reference points, must have two coordinates. One would be with respect to the x-axis and another would be with respect to the y-axis. So here this line XO x dash is called x-axis. So this would be known as x-axis, and this line which is perpendicular to x-axis must be known as y-axis. तो इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं y-axis. And together x-axis and y-axis together are known as coordinate axes or Cartesian coordinate axes. So OX would be the positive x-axis, OX dash would be the negative x-axis, OY would be the positive y-axis, and OY dash would be the negative y-axis. So along the positive x-axis there lies the positive values of x. Along the positive y-axis there lies the positive values of y. Along the negative x-axis there lies negative values of x,
and along the negative y-axis there lies the negative values of what? Y. Now if we have any point P, or before that we will discuss that before taking this point P. Suppose we have a plane. This board is an example of a plane, two-dimensional geometry obviously, and we have drawn two perpendicular axes, x dash and y dash on this plane. Now this system of axes, this coordinate axes x dash and y dash has actually divided this plane into four equal parts, 1, 2, 3 and 4. So this Cartesian, the system of these axes, the system Cartesian coordinate axes, two-dimensional axes, have actually divided this plane into four equal parts. This would be the fourth part of a plane. Again, this would be the fourth part of plane, fourth part of plane, fourth part of plane. The fourth part of a plane is called a quadrant. So this would be the first fourth part of plane, means this would be the first quadrant. Similarly, this would be the second quadrant, and this is known as here second quadrant, because actually we are moving in anti-clockwise direction. So starting from positive x-axis, moving in anti-clockwise direction. So पहले ये quadrant बनेगा, उसके बाद ये quadrant बनेगा, that's why it's called the second quadrant. इसके बाद ये quadrant बनेगा, that's why this one is known as third quadrant. और उसके बाद जो जिगरा जब हम वापस रोटेट करेंगे यहाँ पे तो बनेगा लास्ट क्वाड्रेंट, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रेंट इज टर्म्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट. So the system of Cartesian coordinate axes have actually divided this plane into four equal parts. Fourth part of a plane means quadrant, and that's why this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Since first quadrant is formed from the positive x-axis and positive y-axis. First quadrant जो यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है जिगरा by positive x-axis and positive y-axis. So on this positive x-axis there would be the positive values of x, and along the positive y-axis there would be the positive values of y. That's why every point lying in this quadrant, कहीं कोई भी पॉइंट आप ले लो जो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके सारे वैल्यूज जो होंगे, दो वैल्यूज होंगे, वन इज विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, नेक्स्ट वन इज विथ रेस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस. तो वो दोनों वैल्यूज जो होंगे, एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा. दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव क्वाड्रेंट, because every point in this quadrant must has its x value positive and must has its y value again positive. That's why this first quadrant is here termed as positive quadrant. In the similar fashion, this is actually the negative x-axis, and along the negative x-axis there would be the negative values of x. ठीक है जिगर? So now we are talking about this quadrant, and जो भी points, जितने भी सारे points इस quadrant में आएंगे, उन सारे points का x value जो आएगा, पहले x ले लेते हैं बाद में y ले लेते हैं, तो x का value जो आएगा वो negative आएगा और y का value जो है वो positive आएगा. And that's why this second quadrant is also known as negative positive quadrant. Similarly, अगर इस quadrant की बात करेंगे तो this quadrant is actually formed of two axes. One is negative x-axis and another is again negative y-axis. तो ये वाला quadrant जो third quadrant बन रहा है, ये बन रहा है with the help of negative x-axis and negative y-axis. And that's why जितने भी सारे points इस third quadrant में होंगे, उनका x वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, उनका y वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, and that's why this third quadrant is also known as negative quadrant. And similarly, अगर fourth quadrant की बात करेंगे तो fourth quadrant जो बन रहा है, that's actually formed from the positive x-axis and negative y-axis. तो पहले x ले लो, बाद में y ले लो, तो x जितने भी सारे पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में आएंगे, उन सारे पॉइंट्स का x वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और y वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो पहले x मींस पॉजिटिव, फिर y मींस नेगेटिव. तो दैट्स व्हाई दिस फोर्थ क्वाड्रेंट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नोन एज पॉजिटिव क्वाड्रेंट, second one is known as negative positive quadrant, third one is known as negative quadrant, and the fourth one is termed as positive negative quadrant. Since the system of this perpendicular axis, x-axis and y-axis are dividing the plane into four equal parts,
and that's 4 equal quadrants. 4 quadrants. This would be the first quadrant, this would be the second, this would be the third, and this would be the fourth quadrant. Now, if we are talking about the coordinates, what would be the coordinates of a point? Suppose we have a point P in the first quadrant. Suppose हमारे पास एक point P है and that lies in the first quadrant. अगर उस point P पे हम perpendicular डालेंगे both on x axis as well as on y axis, तो जिगरा ये perpendicular distance जो होगी from point P on x axis, ये रहेगा इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट. तो सपोज इस O से इस O पॉइंट से इस पॉइंट M तक सपोज डिस्टेंस जो है वो x है. दैट इज व्हाई इस पॉइंट P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आएगा वो x आएगा, एंड दैट वुड बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. नाउ अगर इस पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर डालेंगे टू y एक्सिस, और ये डिस्टेंस जो रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन y एक्सिस जो डिस्टेंस रहेगी, एंड उस डिस्टेंस का जो वैल्यू है सपोज वो y हम ले रहे हैं, एंड दैट विल बिकम द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. सो जिगर यू हैव अ पॉइंट P, अ रेफरेंस पॉइंट P, and it has its coordinates as x comma y. X would be the distance of point P, perpendicular distance of point P on x axis, and यानी परपेंडिकुलर आपने डाला है पॉइंट P से M तक, तो जो O से लेके M तक की डिस्टेंस बनती है वो x है, और जो O से लेके यहां पे पॉइंट N तक की डिस्टेंस बनती है वो एक्चुअली y है. तो जिगरा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फिर है क्या? ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस. The distance of point P from the origin along x axis is the x coordinate of the point, and the distance of point P from origin along y axis would be the y coordinate of the point. तो ये वाली डिस्टेंस OM जो होगी ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट बनेगा, और ये वाली डिस्टेंस जो ON रहेगी दैट विल बिकम द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. इसका मतलब अगर आपके पास कोई पॉइंट है 2,3 इन, it will definitely lie in the first quadrant, because as per the sign x is positive, y is positive, so obviously 2,3 will lie in the first quadrant. तो इसका मतलब जो origin से पॉइंट M तक डिस्टेंस यहां पे होगी वो 2 होगी, और जो origin से पॉइंट N तक डिस्टेंस यहां पे होगी वो 3 होगी. So that's why this x is called the x coordinate of a point and this y is called the y coordinate. तो इस x का नाम यहां पे है x coordinate, इसको हम x coordinate से डिनोट करते हैं, और ये y जो है दैट्स द y coordinate of a point. Y coordinate. Now this x coordinate of a point is also known as abscissa. x coordinate का नाम abscissa भी होता है, and this y coordinate is also known as ordinate of a point. So x coordinate of a point has its another name, and that's abscissa. And y coordinate of a point has its another name, and that's ordinate. So every point lying in a plane must has its abscissa, must has its ordinate value. Now it will tell us the structure of the point will tell us about the location of the point, in which of the quadrants that point is lying. If it is x coordinate is positive as well as its y coordinate is positive, then it will definitely lie in the first quadrant. If it is x coordinate is negative, y is positive, then it will definitely lie in the second quadrant. If it is x coordinate and y coordinate both are negative, then it would definitely lie in the third quadrant. And if it is x coordinate is positive, y is negative, then it would definitely lie in the fourth quadrant. Means if you have this point having its coordinates as -4,5, then in which of the following quadrants this point would lie? This point would lie obviously in second quadrant, because x is negative there and y is positive there. So it is actually the structure of the point. It is actually the sign of x coordinate and y coordinate of a point, which will tell us that in which of the quadrants this point is lying. Now we have some points other than this -4, 5. Means if we have a point which is wholly and solely lying on x axis,
अगर हमारे पास एक कोई पॉइंट है जो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका कोई एक्स वैल्यू होगा, यानी ओ से लेके उस पॉइंट तक की कोई डिस्टेंस होगी, तो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। लेकिन ओ से लेके अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर जाएंगे तो वो डिस्टेंस जीरो है, बिकॉज दैट पॉइंट इज नॉट लाइंग इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट्स, दैट पॉइंट इज लाइंग होली एंड सोली ऑन एक्स एक्सिस। तो जिगरा इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा एक्स आएगा, लेकिन वाई की जो डिस्टेंस है वो जीरो आएगी, तो दैट इज वाई दिस पॉइंट हैज इट्स coordinate pair as x comma 0. So that's why any point on x-axis has its on positive x-axis has its coordinates as x comma 0. In the similar fashion, any point which is lying on the negative x-axis must has its coordinate as minus x comma 0. And in the similar fashion, any point which is lying on y-axis, अब कोई भी point जो y-axis पे लाई कर रहा है तो उसकी y डिस्टेंस है, लेकिन x डिस्टेंस जो है वो जीरो है, दैट इज वाई इसका x कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो जीरो बनेगा और y कोऑर्डिनेट y रहेगा। सो दैट इज वाई any point which is lying on the positive y-axis must has its coordinate pair as 0, y, and in the similar fashion अगर ये नेगेटिव y-axis पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 y, and that means any point which is lying on the negative y-axis must has its coordinate pair as 0 y. तो जिगर, this was a brief revision of टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्चुअली टू डायमेंशनल इसमें बहुत सारे कंसेप्ट फिर आते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आती है, सेक्शन फार्मूला आती है, मिड पॉइंट फार्मूला आती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आते हैं। लेकिन ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। But our topic is not actually two-dimensional geometry. Our topic is actually three-dimensional geometry. So अगर हम अब three-dimensional geometry पे जाएंगे, three-dimensional geometry is actually nothing that is the extension of this two-dimensional geometry. अब यहाँ पे two-dimensional geometry में हमारे पास सिर्फ दो डायमेंशंस थे, x and y, x axis and y axis, लेकिन three-dimensional geometry में हमारे पास होंगे yes जिगरा हमारे पास होंगे थ्री डायमेंशंस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ऑल द थ्री एक्सिस, सपोज हमारे पास अभी x एक्सिस है लाइक दिस, और हमारे पास है पॉजिटिव x एक्सिस की बात करेंगे तो सपोज पॉजिटिव x है, और सिमिलरली यहां पे पॉजिटिव y है, तो यहां पे एक और एक्सिस होती है, दिस अवर पॉजिटिव x एक्सिस, दिस अवर पॉजिटिव y एक्सिस, और यहां पे एक और एक्सिस होती है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ox एंड oy। यहां पे आपका ओरिजिन है o, और वो एक्सिस इस तरह होती है कि वो इस x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होती है और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर होती है, यानी वो होती है लाइक दिस। ठीक है जीरा, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सिस है, ये एक ऐसी लाइन है which is perpendicular to x as well as perpendicular to y, which is making an angle of 90 degrees with ox and making an angle of 90 degree with oy। तो वो एक्सिस जो होगी ऐसे होगी, बोर्ड से बाहर होगी, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस का नाम रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव o z। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी अवेलेबल जो है दैट्स अ प्लेन, एंड प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर, इसलिए हम इस ओ जेड को यहां पे डिनोट नहीं कर सकते, इसीलिए फॉर कन्वीनियंस हम इसे थोड़ा बहुत ऐसे डाउन कर देते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं इस ओ जेड को। ये ओ जेड एक्चुअली इस तरह नहीं होती है। अब फॉर कन्वीनियंस टू रिप्रेजेंट दिस थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन, एक्चुअली ओजेड इस तरह नहीं, ओजेड इस तरह होती है जिस तरह ये मार्कर यहां पे मैंने रखा है। सो बट फॉर कन्वीनियंस वी कैन नॉट राइट दिस लाइन ऑन अ बोर्ड, ये लाइन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बोर्ड पे, तो इसीलिए इसको हम ऐसे रख लेते हैं। सो दिस इज अवर पॉजिटिव ओ जेड। सो दिस इज एक्चुअली, these are actually the three positive this perpendicular axis ox, oy and oz। यहां पे हमारे पास ox और oy था, पॉजिटिव एक्सिस की बात करेंगे, लेकिन यहां पे हमारे पास तीन एक्सिस हैं, पॉजिटिव ox एक्सिस, पॉजिटिव oy एक्सिस एंड पॉजिटिव oz एक्सिस, and all the three axes are mutually perpendicular to each other, and the system of these three axes are termed as three-dimensional Cartesian coordinate
system. And since we are dealing with three-dimensional geometry, so we will directly go on to the three-dimensional Cartesian coordinate system. Now, अगर हम ये हमारे पास पॉजिटिव OX है तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव OX होगा, सो दैट वुड बी डिनोटेड बाय OX डैश. ये है हमारे पास पॉजिटिव Y एक्सिस, तो इसी के बिल्कुल अपोजिट में होगी नेगेटिव Y एक्सिस एंड दैट वुड बी डिनोटेड बाय OY डैश. तो सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव OZ एक्सिस है, तो यहां पे होगी हमारी नेगेटिव OZ एक्सिस and that would be denoted by OZ dash. So this structure of mutually perpendicular axes x dash, y dash and z dash is called the three-dimensional Cartesian coordinate system. Now जिगरा हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन पे हमारे पास टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो वो टू डायमेंशनल एक्सिस जो है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, वो एक प्लेन को डिवाइड कर रही है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ईच इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट. नाउ यहां पर हमारे पास जिगरा दो एक्सिस नहीं है बल्कि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं. तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस स्पेस को 4 पार्ट्स में नहीं बल्कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हैं. एंड दैट्स व्हाई यहां पे बनते हैं क्वाड्रेंट्स. फोर्थ पार्ट ऑफ अ प्लेन यहां पे बनेंगे जिगरा ऑक्टेंट्स, OCTANTS, ऑक्टेंट्स. क्योंकि यहां पे जो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, वो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस को डिवाइड करेगा into 8 equal regions, and that's why 8th region of space is called octant. So that's why यहां पे quadrants नहीं बल्कि बनेंगे जिगरा octants. अब वो octants कैसे बनेंगे, तो ये कंसेप्ट यहां पे बोर्ड पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है और इसे समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा. तो जिगरा इसीलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा एक छोटी सी कोशिश की है, एक मॉडल बनाया है ऑफ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. उस मॉडल को हम लेके चलेंगे और वहां मैं आपको समझा देता हूं कि हाउ दिस 3 परपेंडिकुलर एक्सिस डिवाइड्स द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स. और हर किसी ऑक्टेंट का, अब यहां पे हमने बात की थी एक पॉइंट की, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स आए थे. लेकिन अगर हम यहां पे किसी पॉइंट की बात करेंगे तो उस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे. One would be with respect to x-axis, that's x coordinate. Next would be with respect to y-axis, y coordinate, and next would be the z coordinate of a point. So यहाँ पे हमारे पास 2 ही कोऑर्डिनेट थे x and y, लेकिन यहाँ पे होंगे 3 कोऑर्डिनेट्स. तो ये पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे और कैसे ये 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, 3 डायमेंशनल एक्सिस जो है, ये कैसे डिवाइड करेंगे एक स्पेस को इनटू 8 ऑक्टेंट्स, यहां पे मैं आपको जिगरा समझा रहा हूं. तो सपोज आपके पास ये है, दिस इज योर 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस बन रही है ये आपकी जेड एक्सिस बन रही है. देख लेना जिगरा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है OX, ये पॉजिटिव Y है OY, और ये पॉजिटिव यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है OX, ये आपकी पॉजिटिव Y एक्सिस है OY, और ये जो एक्सिस है ये आपकी पॉजिटिव Z एक्सिस है, दैट इज OZ. सो OX, OY एंड OZ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो सिंस x axis is perpendicular to y axis and y axis is perpendicular to z axis, means all the 3 axes, x axis, y axis and z axis are mutually perpendicular to each other. ठीक है जिगरा. अब पूरी एक्सिस ले लेंगे तो ये आपके पास x है, ये x डैश है. ठीक है जिगरा. ये आपके पास y है, ये आपके पास y डैश है, और ये आपके पास z है, और ये आपके पास z डैश है. Are you getting me जिगरा? This is your x x dash, this is your y y dash. यहां पे बात करेंगे x x dash, y y dash, और ये जो एक्सिस है this is your z z dash. यहां पे मैं लिख रहा हूं यहां ये x x dash है यहां पे. ठीक है जिगर. ये आपका y y dash है,
और ये यहां पे जो होगा ये आपका Z डैश। तो ये आपका 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हमारे पास स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दिस 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विल डिवाइड द स्पेस इनटू 4 इक्वल रीजन्स। ये वाला रीजन जो बनेगा पहला रीजन बनेगा, ये वाला रीजन जो बनेगा दूसरा रीजन बनेगा, ये वाला रीजन जो बनेगा तीसरा रीजन बनेगा, और ये वाला रीजन जो बनेगा चौथा रीजन बनेगा। फिर से दिखा रहा हूं जिगरा, दिस अवर फर्स्ट रीजन, ये वाला रीजन जो ऐसे दिखाएंगे, ये वाला रीजन जो है फर्स्ट रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये सेकंड रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये थर्ड रीजन है, और ये वाला रीजन जो है ये फोर्थ रीजन है। तो इसी तरह फोर्थ रीजन एबो दिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, सो फोर्थ रीजन एबो एक्स एक्सिस, 4 रीजन एबो एक्स एक्सिस एंड 4 रीजन बिलो एक्स एक्सिस। तो ये आपके जिगरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट, और ये आपके पास शाबाश फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड एट्थ ऑक्टेंट। तो दैट इज व्हाई द 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम divides the space into 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, divides the space into 8 equal regions, and each region is called an octant. That is the 3 dimensional Cartesian coordinate system divides the space into 8 octants. ठीक है जिगरा, तो ये था कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेंट। अभी बात करेंगे कि इन ऑक्टेंट्स का साइन जो है वो क्या आएगा। तो जिगरा आपके पास अब जो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इस स्पेस को डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली इनटू 8 इक्वल रीजन्स, and all the regions are known as octants, so there will form 8 octants. अब पहला ऑक्टेंट जो होगा वो ये ऑक्टेंट होगा, इसमें x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा, z भी पॉजिटिव आएगा। देख लेना जिगरा, इस डायरेक्शन में x, इस डायरेक्शन में x, ऊपर की डायरेक्शन में y, और इसकी डायरेक्शन में टुवर्ड्स द स्क्रीन की डायरेक्शन में जो है वो z बनेगा। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए जो फर्स्ट ऑक्टेंट बनेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट, तो ऑक्टेंट्स का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा जिगरा, हाउ मेनी ऑक्टेंट्स आर देयर, दे वुड बी 8 इन द नंबर। और पहला ऑक्टेंट जो होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट जो होगा उसमें x का भी वैल्यू प्लस, y का भी वैल्यू प्लस, z का भी वैल्यू प्लस, and that's why that octant is called plus 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 octant. तो इसका मतलब जिगरा ये कि जितने भी सारे पॉइंट स्पेस में आएंगे फर्स्ट ऑक्टेंट में, जितने भी सारे पॉइंट्स इस फर्स्ट ऑक्टेंट में आएंगे, उन सारे पॉइंट्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे जिगरा, पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव 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 ऑक्टेंट। अब अगर बात करेंगे सेकंड ऑक्टेंट की, तो सेकंड ऑक्टेंट की अगर हम बात करेंगे, इस सेकंड ऑक्टेंट में द सेकंड ऑक्टेंट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो जिगरा ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव, जेड का भी पॉजिटिव, तो दैट इज वाई ये बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऑक्टेंट। गेटिंग मी जिगरा? नाउ आते हैं थर्ड ऑक्टेंट पे। तो थर्ड ऑक्टेंट जो है, ये वाला ऑक्टेंट थर्ड ऑक्टेंट बनेगा। तो ये वाला ऑक्टेंट, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकंड ऑक्टेंट, ये थर्ड ऑक्टेंट। तो इस थर्ड ऑक्टेंट की अगर हम बात करेंगे, कैसे बनेगा ये थर्ड ऑक्टेंट, एक्स की डायरेक्शन जो है, ये पीछे वाला ऑक्टेंट, ये सेकंड है, तो इसके बिल्कुल जो पीछे ऑक्टेंट है वो थर्ड ऑक्टेंट होगा। तो उस थर्ड ऑक्टेंट में एक्स ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है, y जो है ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, और z जो आ रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो z फॉरवर्ड डायरेक्शन में z पॉजिटिव है, बैकवर्ड डायरेक्शन में z नेगेटिव है, इसलिए x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव आ रहा है, तो ये बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्टेंट। ठीक है जिगर?
बात करेंगे चौथे ऑक्टेंट की। तो चौथा ऑक्टेंट जो होगा ये वाला ऑक्टेंट होगा, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट के बिल्कुल पीछे जो ऑक्टेंट होगा वो फोर्थ ऑक्टेंट होगा। और उस फोर्थ ऑक्टेंट में क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव ऑब्वियसली, और वाई जो है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में है मींस पॉजिटिव, और जेड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है दैट्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स इस तरह पॉजिटिव वाई इस तरह, नेगेटिव जेड बैकवर्ड्स, तो ये बनेगा पॉजिटिव, यस पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्टेंट। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, हाँ जी, वाई का वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव, जेड का वैल्यू बैकवर्ड्स दैट्स नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्टेंट। इसी तरह अगर हम बात करेंगे फिफ्थ ऑक्टेंट की, तो फिफ्थ ऑक्टेंट जो होगा वो बिल्कुल इस फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे होगा। तो फर्स्ट ऑक्टेंट अगर हम नीचे की बात करेंगे तो जिगरा नीचे की डायरेक्शन में ये एक्स है मींस पॉजिटिव है, और ये वाई है, यानी ये ऊपर की डायरेक्शन में जो था पॉजिटिव आया था, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव वाई बनेगा। तो एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव आएगा, और जेड आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मींस पॉजिटिव आएगा। तो एक्स पॉजिटिव, यस जिगरा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, सो बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्टेंट। गेटिंग मी? फिर से दोहरा रहा हूं, फिफ्थ क्वाड्रेंट फिफ्थ ऑक्टेंट की जब हम बात करेंगे, फिफ्थ ऑक्टेंट बिल्कुल फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे आएगा जिगरा। तो जब ये फिफ्थ फर्स्ट के नीचे आएगा तो ऑब्वियसली एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा, वाई जो है वो नेगेटिव आएगा, जेड जो है वो पॉजिटिव आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो दैट्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट पॉजिटिव ऑक्टेंट। यानी ये भी, अब ये जो होगा ये सिक्स्थ ऑक्टेंट होगा। तो इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव आएगा, एक्स लेफ्ट की डायरेक्शन में तो नेगेटिव, वाई जो है नीचे की डायरेक्शन में तो नेगेटिव, जेड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, मीन सिक्स्थ ऑक्टेंट जो आएगा उस सिक्स्थ ऑक्टेंट के साइनस जो होंगे नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसी तरह जिगरा अगर हम सेवंथ ऑक्टेंट की बात करेंगे तो सेवंथ ऑक्टेंट जो होगा सिक्स के बिल्कुल पीछे जो ऑक्टेंट होगा वो सेवंथ ऑक्टेंट होगा, यानी ये वाला ऑक्टेंट जो है ये सेवंथ ऑक्टेंट होगा। तो ये आपका सिक्स है, पीछे वाला इसका सेवंथ है। सो मीन्स अब यहां पे एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई जो है वो भी नेगेटिव है, और जेड जो है वो पीछे की तरफ है यानी फिर से नेगेटिव है। तो ये बनेगा नेगेटिव 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 ऑक्टेंट। इसी तरह हम लास्ट ऑक्टेंट एट्थ ऑक्टेंट की बात करेंगे तो एट्थ ऑक्टेंट जो है वो फिफ्थ के बिल्कुल पीछे जो ऑक्टेंट है वो एट्थ ऑक्टेंट आएगा। मींस एक्स इसका पॉजिटिव होगा, शाबाश जिगरा, एक्स इसका पॉजिटिव होगा, वाई इसका नेगेटिव होगा, और जेड भी इसका नेगेटिव होगा। तो ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऑक्टेंट। This was the structure of the octants formed by this three-dimensional Cartesian coordinate system in space. So this three-dimensional Cartesian coordinate system divides the space into 8 equal regions. All the regions are termed as octants. This the first octant will be plus 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 octant, second octant, third octant, fourth octant, fifth octant, sixth octant, seventh octant, and eighth octant. So this was Jigar all about the structure of octants formed by three-dimensional Cartesian coordinate axes in space. Now since we are talking about a point, if we have a point, then that point must have three coordinates. In three-dimensional geometry, this point P must has three coordinates. Suppose this is our positive x-axis OX, this is our positive y-axis OY, and this is our positive z-axis OZ. Is that clear? This plane, and in case of this Cartesian coordinate system, we have actually three planes. This plane,
अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे, जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पे, इस प्लेन की बात करेंगे, ये प्लेन बन रहा है विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसलिए इसका नाम रहेगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है जिगरा। ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन बन रहा है विथ एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसीलिए इसका नाम रहेगा एक्स जेड प्लेन। और ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन बन रहा है with y axis and z axis, and that's why this plane is termed as xz plane। तो ये वाला xy प्लेन, ये वाला जो है xz प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है ये yz प्लेन है। ठीक है जिगरा। इसी तरह यहां पे भी ये xy प्लेन, ये जो है xz प्लेन है, और ये वाला प्लेन जो है ये है जिगरा y की डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में और y की डायरेक्शन में, मींस ये zx प्लेन या xz प्लेन आएगा। तो इसी तरह थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में और एट्थ में। तो कितने प्लेन्स होते हैं यहां पे? 3 प्लेन्स होते हैं। एक का नाम होता है एक्स वाई प्लेन विच इज फॉर्मड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दूसरा जो है दैट इज वाई जेड प्लेन, दैट इज फॉर्मड ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और तीसरा जो है वो है एक्स जेड प्लेन, दैट इज फॉर्मड ऑफ एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर यहां बात करेंगे तो ये आपकी जिगरा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहां पे जो प्लेन बनेगा, यहां पे जो प्लेन होगा, दिस प्लेन वुड बी नोन एज एक्स वाई प्लेन। दिस प्लेन वुड बी नोन एज एक्स वाई प्लेन बिकॉज इट इज होली एंड सोली फॉर्मड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब अगर हम बात करेंगे इस प्लेन की, तो ये वाला प्लेन जो है, दैट प्लेन इज होली एंड सोली फॉर्मड ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दैट इज व्हाई दिस प्लेन इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। और अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे, this plane is wholly and solely formed of x axis and z axis, and that's why this plane is known as xz plane, right? अब अगर आपका कोई पॉइंट इस स्पेस में है, सपोज वो पॉइंट जो है वो P है यहां पे, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है फ्रॉम, सपोज यहां पे ये पॉइंट P है, उस पॉइंट P की क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाईजेड प्लेन। यानी वाईजेड प्लेन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर दो इस पॉइंट P तक, वो इस पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। गेटिंग मी? एक पॉइंट P जो स्पेस में लाई कर रहा है, उस पॉइंट P की क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाईजेड प्लेन। जो वाईजेड प्लेन इस तरह एक प्लेन होगा, इस प्लेन से इस पॉइंट P तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, दैट डिस्टेंस वुड बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P। और इस पॉइंट P से इस पॉइंट P मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, अगर आप मेजर करोगे एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू पॉइंट P, वो जो डिस्टेंस बनेगी दैट वुड बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और क्या डिस्टेंस होगी ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वो जिगरा इस पॉइंट P का z कोऑर्डिनेट बनेगा। सो हियर वी हैव एक्चुअली अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर, and in that cubicle structure the point of intersection of these three edges of this cube represents a point P। सपोज ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे 3 होंगे, x, y एंड z। x कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्चुअली जिगरा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम yz प्लेन। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xz प्लेन। और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xy प्लेन। अब जिगरा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स थे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का हमने दूसरा नाम दिया था एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का हमने दूसरा नाम दिया था ऑर्डिनेट। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट का फिर से नाम रहेगा एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का फिर से नाम रहेगा ऑर्डिनेट।
तो z कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा? सो एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड व्हाट? एप्लीकेट। तो z कोऑर्डिनेट का नाम रहता है जिगरा यहां पे एप्लीकेट। सो एप्लीकेट कहां पे एग्जिस्ट होगा? स्पेस में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। सो जिगर, in case of 3-dimensional geometry, x-axis is also known as abscissa, y-axis is also known as what? Ordinate, and z-coordinate of a point is also known as applicate. Actually, the terms abscissa, ordinate and applicate, they are from the x-axis, y-axis and z-axis. अब हम एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ भी ये रिलेट करते हैं, abscissa, ordinate and applicate. Actually, abscissa, ordinate and applicate are with respect to the axes, x-axis, y-axis and z-axis. Now, Jigra, in case of 2-dimensional geometry, we have a unit vector which is along the direction of x-axis, and that's I cap, and we have a unit vector along the direction of positive y-axis, and that's represented by j cap. In the similar fashion, along the positive x-axis, in case of 3-dimensional geometry, we have again a unit vector I cap, and along the positive direction of y-axis, we have again a unit vector j cap. But along the positive direction of z-axis, we have a unit vector, and that's represented by k cap. So I cap would be the unit vector along positive x-axis, y cap or j cap would be the unit vector along the positive y-axis, and k cap would be the unit vector along the positive z-axis. Why we have taken these unit vectors? Because we are dealing with 3-dimensional geometry using the concept of vector analysis, using the concept of vector algebra. And these unit vectors I cap, j cap and k cap, they are actually the unit vectors along the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis. That's why these I, j and k in this 3-dimensional geometry using the concept of vectors, they are termed as base vectors. तो ये unit vectors जो होते हैं along the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis, ये कहलाएंगे जिगरा base vectors. तो ये था brief introduction about the concept of 3-dimensional geometry. अब 2 dimension में पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होंगे और 3 dimensional में एक पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होंगे. अब 2-dimensional ज्योमेट्री 11th में आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी है, सेक्शन फार्मूला पढ़ी है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ी है, और वो फार्मूलाज हम यहां पे भी डिस्कस करने वाले हैं, प्रूव उनका करने वाले हैं. लेकिन इस क्लास के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 3-dimensional ज्योमेट्री के लिए इतना ही. नेक्स्ट देख लेंगे अगले क्लास में.